وہ مشہور کہاوت تو آپ لوگوں نے سنی ہی ہوگی کہ راجا کی جان طوطے کے اندر۔ تو بات یہ ہے کہ امریکہ اور ایران کی جو جنگ ہے، جو ڈونلڈ ٹرمپ کی پہلے ہی ایک بڑی غلطی ثابت ہو چکی ہے، وہ اب آگے بڑھتے ایسے حالات میں پہنچ گئی ہے کہ اس طوطے کے اوپر ہی خطرہ منڈرانے لگا ہے کہ جس طوطے کے اندر ہماری دنیا کے راجا، موجودہ راجا مطلب کہ امریکہ کی جان ہے۔ اور حیرانے کی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ لوگ غور سے پوری جنگ کے اوپر نظر ڈالیں گے تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ ایران کی بھی شروع سے نظر اسی طوطے کے اوپر تھی۔ اب یہ طوطا کون سا ہے اور کیسے اس کے اوپر خطرہ منڈرا رہا ہے، یہ تو بات کریں گے، مگر اس سے پہلے میں آپ لوگوں کی نظر ایک اور چیز پر ڈلوانا چاہتا ہوں۔ پچھلے لگ بھگ 35-36 سال سے، مطلب کہ جو ویسٹ ایشیا میں گلف وار ہوئی تھی، اس کے بعد سے لگاتار یہ دیکھا گیا کہ امریکہ نے دنیا بھر کے اندر جنگ لڑنے کے لیے اور اپنی بادشاہت کو قائم رکھنے کے لیے 4 چیزوں پر کام کیا تھا۔ مطلب اس نے 4 چیزوں کا ایک فارمولا بنایا تھا کہ وہ جنگیں اس طرح سے لڑے گا۔ اس نے یہ جو اسٹریٹجی بنائی تھی، اس کا پہلا فارمولا تو یہ تھا کہ اپنے ملٹری بیسز کو پوری دنیا کے اندر پھیلا دو، زیادہ سے زیادہ ملٹری بیسز بناؤ اور وہ بھی پوری دنیا میں پھیلا دو، تاکہ جس علاقے کے دشمن کو بھی ختم کرنا ہو، اس سے لڑنا ہو، تو وہاں پر ہم پہلے سے موجود ہونے چاہیے۔ دوسرا فارمولا یہ تھا کہ آسمان میں بڑد بنا کر رکھی جائے، اپنے آپ کو ہمیشہ اتنا ایڈوانس رکھا جائے کہ آپ کا کوئی بھی دشمن ہو، طاقتور سے طاقتور، وہ آپ کے مقابلے میں آسمان میں طاقتور نہیں ہونا چاہیے، آپ کی ایئر فورس سب سے آگے ہونی چاہیے۔ تیسرا فارمولا کیا تھا؟ تیسرا فارمولا تھا کہ پریسائز اسٹرائکس، مطلب آپ دیکھیں گے کہ باقی جو چھوٹی چھوٹی طاقتیں ہیں جن کے پاس بہت سارے ہتھیار ہیں، وہ ان ہتھیاروں سے حملے تو کرتے ہیں مگر وہ پریسائز حملے نہیں ہوتے ہیں۔ یہ ٹیکنیکل ایڈوانسمنٹ امریکہ کے ہی پاس ہے، یا اس کے جو دوست دیش ہیں، یا پھر رشیا، چائنا جیسے دیشوں کے پاس بھی ہے، کہ جو بالکل پریسائز پن پوائنٹ اٹیک کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے بڑے سے بڑے لیڈرز کے جو خفیہ جگہوں پر ہوتے ہیں، ان کو بھی یہ ختم کر پاتے ہیں۔ اس کے بعد جو چوتھی اور آخری چیز تھی، آخری فارمولا تھا، وہ تھا ریپڈ وکٹری، مطلب کہ بہت تیزی کے ساتھ ملنے والی فتح۔ کیونکہ جب آپ اوپر کے تینوں پوائنٹس کو کمپلیٹ کر لیں گے تو چوتھے نمبر پر یہ جو پوائنٹ ہے یہ اپنے آپ حاصل ہو جائے گا۔ مطلب ان تینوں چیزوں کی مدد سے آپ کو جیت جلد سے جلد ہی ملے گی، آپ کو ایک لمبی جنگ لڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب غور کرنے والی بات یہ ہے کہ 28 فروری 2026 کے دن جب ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل کے کہنے پر ایران کے خلاف جنگ میں کودنے کا فیصلہ کیا تھا، تو اس جنگ کے اندر بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے انہی 4 پوائنٹس کے ساتھ اترنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اور دیکھیے کہ ایران نے جس طرح سے اس جنگ کو لڑا، اس نے جو پیترے اپنائے، ان پیتروں نے، اس طریقے نے ان چاروں ہی چیزوں کو فیل کر دیا۔ مطلب جس پورے پیٹرن پر پچھلے 35 سے 36 سال تک امریکہ کام کرتا رہا تھا، یا پھر جو ایزیوم کرتا رہا تھا، وہ ایزمپشن اس کا پوری طریقے سے غلط ثابت ہوا ہے۔ اور اب ایسے حالات ہو چکے ہیں کہ یہ پوری جو اسٹریٹجی تھی 4 پوائنٹس والی، یہ تو مٹی میں مل ہی گئی ہے، بلکہ اب باقی دنیا بھی یہ بات سوچنے پر مجبور ہو گئی ہے کہ فیوچر کی جنگیں کس نئے طریقے سے لڑی جائیں گی۔ کیونکہ اب فیوچر میں جو بھی طاقت کسی اور کے اوپر حملہ کرے گی، تو وہ ایران کی یہ جو لڑی گئی جنگ ہے، اس کو بڑی ہی گہرائی سے پڑھنے کے بعد اور سمجھنے کے بعد ہی رننیتی بنا کر حملہ کرے گی۔ اب اگر آگے بڑھیں تو ابھی کچھ دن پہلے ہی ایک خبر آئی تھی جس کو وال اسٹریٹ جرنل نے بھی رپورٹ کیا تھا کہ امریکہ سیریسلی یہ کنسیڈر کر رہا ہے کہ عرب دنیا کے اندر جو اس کے ملٹری بیسز ہیں، جو فوجی اڈے ہیں، ان میں بھی خاص طور سے جو کویت میں، بحرین میں، یا پھر سعودی عربیہ جیسے علاقوں میں ہیں جو ایران کے بہت قریب ہیں اور ایران کی میزائلوں سے آسانی سے ٹارگٹ ہو جاتے ہیں، ان سب کو وہ سمیٹے گا، ان سب کو وہاں سے ہٹائے گا اور اٹھا کر اسرائیل کی طرف لے کر جائے گا۔ اسرائیل میں، یا پھر شاید تھوڑا اور آگے بڑھ کر یورپ کے کسی دیش میں لے جائے گا۔ فی الحال اسرائیل کا نام تو وہاں پر رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ ان تمام دیشوں سے وہ اپنے ملٹری بیسز کو ہٹا کر اسرائیل میں لانے کا پلان بنا رہا ہے۔ اب ویسے تو یہ خبر کئی دن پرانی ہے، آپ میں سے جتنے لوگ اپ ٹو ڈیٹ رہتے ہوں گے انہوں نے اس خبر کو سن بھی لیا ہوگا یا پڑھ لیا ہوگا، مگر یہاں پر میں اس کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو آگے کی بات آسانی سے سمجھ میں آ سکے۔ بات یہ ہے کہ جس طوطے کا ذکر ہم نے ویڈیو کے بالکل شروع میں کیا تھا، یہ وہ طوطا ہے، وہ قیمتی چیز ہے کہ جس کو لے کر ویسٹرن میڈیا میں، یا دوسرے شبدوں میں کہیں تو انگلش میڈیا میں تو کافی ڈسکشن ہو رہا ہے، مگر جو ہندی اور اردو کا میڈیا ہے وہاں پر اس کو لے کر کچھ خاص چرچائیں نظر نہیں آ رہی ہیں۔ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیا چیز ہے، تو دراصل یہ جو طوطا ہے اس کا نام ہے پیٹرو ڈالر۔ اب آخر یہ پیٹرو ڈالر کس بلا کا نام ہے؟ تو اس پوری چیز کی جو کہانی ہے وہ شروع ہوتی ہے لگ بھگ 1970 کے دور سے۔ یہ بات ہے 1971 کی کہ جب امریکہ ایک بہت بڑی مصیبت کا سامنا کر رہا تھا، بلکہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے وجود کی جنگ لڑ رہا تھا۔
जंग ये कोई कन्वेंशनल जंग नहीं थी, बल्कि हुआ ये था कि वियतनाम जंग की वजह से उसका जो गोल्ड रिजर्व था वो लगभग खाली हो चुका था, उस पर बहुत गहरी चोट लगी थी। तो अब ऐसे मुश्किल हालात में अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे रिचर्ड निक्सन, उन्होंने एक बहुत बड़ा गेम खेला, एक ऐसा गेम कि जिसने अचानक से हमारी इस दुनिया के पूरे सिस्टम को बदल कर रख दिया। दरअसल उन्होंने किया ये कि क्योंकि उनका गोल्ड खाली हो रहा था तो उन्होंने गोल्ड के ऊपर प्रहार किया, जो गोल्ड स्टैंडर्ड था उसको ख़त्म किया और उसकी जगह पर एक फेक डॉलर करेंसी को लॉन्च कर दिया। अब जाहिर सी बात है कि इस डॉलर के पीछे गोल्ड का कोई ख़ास आधार तो था नहीं, बल्कि ये करेंसी सिर्फ और सिर्फ लोगों के विश्वास, लोगों के भरोसे पर टिकी हुई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये कैसा भरोसा था, और सवाल तो फिर ये भी है कि अमेरिका ने भले ही ये फेक करेंसी लॉन्च तो कर दी थी जिसके पीछे गोल्ड का कोई आधार नहीं था, तो दुनिया भला इसको क्यों खरीदती? तो इन चीज़ों का जवाब अब आपको मिलेगा। हुआ ये था कि 1974 में अमेरिका ने सऊदी अरबिया के साथ एक डील की। इसी डील को आज दुनिया पेट्रो डॉलर के नाम से जानती है। अमेरिका ने सऊदी अरबिया से कहा कि भाई तुम्हारे पास तेल की तो कोई कमी है नहीं, भरमार है, तो तुम जैसे चाहो भर भर कर इसको बेचो, लेकिन अगर तुमको इसको लगातार बेचना है, खूब माल बनाना है, तो जाहिर सी बात है तुम्हें भी एक चीज़ ज़रूर चाहिए होगी, और वो चीज़ है सिक्योरिटी। क्योंकि अगर तुम्हारा देश हमेशा महफूज रहेगा, तुम्हारे ये जो तेल के कुएँ, तेल की फैसिलिटीज़ हैं ये महफूज रहेंगी, और सबसे बढ़कर जो तुम्हारे तेल गुजरने के रास्ते होंगे जैसा कि ये स्ट्रेट वगैरह हैं, ये सब महफूज होंगी, तभी तुम फ्यूचर में लगातार पैसा बना सकोगे। अगर यही चीज़ें महफूज नहीं होंगी, सिक्योरिटी ही तुम्हारी नहीं हो पाएगी, तो भला ये जो बेशुमार तुम्हारे पास तेल है इसका भी तुम क्या कर लोगे? तो अब हुआ ये कि अमेरिका ने सऊदी अरबिया को हिफाजत की जिम्मेदारी दी कि भाई हमारे पास तो हथियारों की कोई कमी है नहीं, हम इस मामले में मास्टर हैं और हम यही तो करते हैं, तो चलो हम आज से तुम्हारी पूरी हिफाजत की जिम्मेदारी लेते हैं। बदले में तुमको सिर्फ इतना करना है कि ये जितना भी तुम तेल बेचोगे वो सिर्फ और सिर्फ डॉलर में बेचोगे। दोनों ने एक दूसरे की बात मान ली और यहाँ से पेट्रो डॉलर का आगाज़ हुआ, जिसका आसान ज़बान में मतलब ये है कि नई दुनिया की जो एक कीमती चीज़ है, मतलब कि तेल, वो डॉलर करेंसी से कनेक्ट हो चुका था। और जब सऊदी अरबिया ने इस चीज़ पर साइन किए और सऊदी अरबिया ने ये एग्रीमेंट किया, तो जाहिर सी बात है ये वो दौर हुआ करता था कि जब बाकी छोटी छोटी ये जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, ये अरब कंट्रीज़ हैं, ये सब सऊदी अरबिया के पीछे ही चला करती थी, तो उन्होंने भी एक एक करके इस चीज़ को ज्वाइन कर लिया, और इस तरह से ये जो पूरा मिडिल ईस्ट का तेल था, लगभग सारे ही गल्फ़ देशों का, ये डॉलर में बिकने लगा। दूसरी तरफ जो अमेरिका था वो भी अब बारी बारी से धीरे धीरे तमाम अरब देशों में अपने अड्डे बनाने लगा और अपनी फ़ौज वहाँ पर उतारने लगा। अब जाहिर सी बात है कि भाई तेल तो बहुत कीमती चीज़ है, दुनिया में हर किसी को तेल चाहिए, और अब जब ये सारे तेल वाले देश, ये जो गल्फ़ के देश थे, ये तेल डॉलर में ही बेचने लगे, तो जिनको भी तेल ख़रीदना था उनको डॉलर चाहिए था, सब डॉलर के पीछे भागने लगे। और देखते ही देखते वो होने लगा कि जो अमेरिका की ख्वाहिश थी, मतलब डॉलर की इतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ गई और डॉलर का इतना ज़्यादा रुतबा बढ़ गया कि वो दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी बन गया। और हाँ, यहाँ पर सबसे अहम बात हम कैसे भूल सकते हैं, ये जो पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट हुआ था, इसमें एक तीसरी चीज़ भी थी। वो तीसरी शर्त ये थी कि ये तमाम गल्फ़ देश जब डॉलर के बदले में तेल बेचेंगे, तो उस तेल से जो मुनाफा होगा, जो कमाई होगी, जो फ़ायदा होगा, उसको अमेरिका की जो बैंक्स हैं या अमेरिका के जो बॉन्ड्स हैं उनमें इन्वेस्ट करना होगा। मतलब एक तो डॉलर में ही ये सिर्फ तेल बेचेंगे, और फिर उससे जो फ़ायदा होगा वो भी अमेरिका में ही इन्वेस्ट किया जाएगा, उसके बदले में ये हथियार वगैरह ख़रीदेंगे या फिर और चीज़ों में फ़ायदा लेंगे। इस तरह से ये डॉलर करेंसी की एक साइकिल बन गई कि जिसका सबसे बड़ा विनर, सबसे बड़ा विजेता कोई और नहीं बल्कि अमेरिका था। तब से लेकर आज तक लगातार हम देख रहे हैं कि दुनिया इसी तरीके से काम कर रही है, मतलब दुनिया सिर्फ और सिर्फ डॉलर के पीछे भाग रही है। आज अक्सर ये जो आप एक्सपर्ट्स की ज़बान से सुनते रहते हैं कि भाई अमेरिका तो एक गुब्बारे की तरह है, जब भी फटेगा अचानक से फटेगा, ज़मीन पर गिर जाएगा, क्योंकि उसकी इकोनॉमिक हालात ऐसे हैं कि जितनी बड़ी उसकी इकोनॉमी है शायद उतना ही बड़ा उसके ऊपर कर्जा भी है। तो ये बात पूरी तरीके से सही है, उसके ऊपर कर्जा भी बहुत ज़्यादा है, मगर कर्जे के बावजूद भी वो जो सर्वाइव कर रहा है उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जानते हैं क्या वजह है? उसकी वजह यही पेट्रो डॉलर है, उसकी वजह यही डॉलर की ताकत है, क्योंकि पूरी दुनिया को हर अच्छे और बुरे हालात में सिर्फ और सिर्फ डॉलर चाहिए है। दुनिया डॉलर्स की मोहताज हो गई, बल्कि ये कहिए कि वो एक ऐसे जाल में फंस गई कि जिससे वो अपने आप को अलग रख ही नहीं पा रही थी। फिलहाल ये तो पुरानी बात है, क्योंकि अगर बिल्कुल आज की डेट में इस पूरे सिस्टम को बैठकर देखा जाए तो हमको यहाँ पर कुछ गड़बड़ी भी नज़र आती है। गड़बड़ी ये है कि पिछले कुछ सालों से ये देखा जा रहा है कि इसको लेकर कुछ बगावती सुर बुलंद
होने लगे हैं। बीच बीच में तो सोशल मीडिया के ऊपर ये अफवाहें भी उड़ती रही हैं कि देखो अब चाइना डॉलर को रिप्लेस करने जा रहा है। कभी आती है कि रशिया चाइना मिलकर कोई करेंसी बना रहे हैं जो पेट्रो डॉलर ख़त्म कर देगी। कभी इस तरह की किसी दूसरी ताकतों के भी नाम लिए जाने लगते हैं कि शायद उन ताकतों का इरादा है कि वो इस पेट्रो डॉलर को ख़त्म कर डालेंगी और पेट्रो डॉलर के साथ अमेरिका भी ख़त्म हो जाएगा। अब ये सारी चीज़ें लगातार मीडिया और सोशल मीडिया पर पिछले कई सालों से चल तो रही थी, मगर साथ ही साथ डॉलर भी अपनी बिल्कुल सेम रफ्तार में चलता आ रहा था। मतलब अफवाहें और ख़बरें चाहे जो कुछ भी हों, लेकिन डॉलर की बादशाहत कायम थी। मगर फिर क्या हुआ ये कि डोनाल्ड ट्रंप नाम का एक राष्ट्रपति आया। उस अमेरिकन प्रेसिडेंट को अचानक से एक एडवेंचर करने की सूझी कि क्यों ना ईरान के ऊपर हमला किया जाए, या ये कह सकते हैं कि इजराइल ने उसको बबूल के पेड़ पर चढ़ा दिया कि बादशाह सलामत, अगर आप बाकी जगहों पर सब कुछ कर सकते हैं, आप वेनेजुएला में कर सकते हैं, फलां जगह आपने ये कर दिया, उस जगह भी आपने ये कर दिया, तो यहाँ पर भी आप इस काम को तमाम कर ही डालेंगे। डोनाल्ड ट्रंप उस जंग में कूद गए और उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो हमारे सामने मौजूद है। बाकी सारी चीज़ें तो छोड़िए, बल्कि गल्फ़ के इलाके में फैले हुए वो सारे मिलिट्री बेसिस कि जो इन्हीं सारे देशों की हिफाजत करने के लिए बनाए गए थे वो भी बर्बाद हो चुके हैं, पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं। वहाँ पर अमेरिका दोबारा से अपनी मिलिट्री फैसिलिटीज़ जब जंग ख़त्म हो जाएगी तो इंस्टॉल करेगा भी या नहीं, या फिर यहाँ से अपना ताम झाम उठाकर निकल ही लेगा, जैसा कि हमने शुरू में रिपोर्ट भी बताई है कि अमेरिका कंसीडर कर रहा है। ये अभी तक क्लियर नहीं है कि वो करेगा क्या, मगर हाँ एक बात क्लियर हो चुकी है कि इस जंग के अंदर ये जो कुछ भी हुआ है, इन तमाम चीज़ों की वजह से अब इन तमाम ताकतों की तरफ से एक लॉजिकल सवाल पैदा हो चुका है। वो सवाल ये है कि अगर आप हमारी हिफाजत नहीं कर सकते हैं, अगर हमारे और आपके बीच का जो सिक्योरिटी पूरा सिस्टम था वो ख़त्म हो चुका है या कमज़ोर हो चुका है, लड़खड़ा चुका है, तो फिर पेट्रो डॉलर का क्या मतलब बनता है? क्योंकि पेट्रो डॉलर की जो बुनियाद थी वो इसी चीज़ पर ही खड़ी हुई थी कि अमेरिका सिक्योरिटी देगा। अब जाहिर सी बात है, जब आप हमें सिक्योरिटी नहीं दे रहे हैं और हम धीरे धीरे वैसे भी दूसरी ताकतों की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, मतलब कोई पाकिस्तान की तरफ जा रहा है, कोई टर्की की तरफ, तो कोई आपस में ही एक गठबंधन बनाने की बातें कर रहा है, या कोई किसी और तरफ जा रहा है, तो जब ऐसे हालात हैं तो भला हम दूसरी ताकतों को इस बात पर मजबूर क्यों करें कि वो सिर्फ और सिर्फ डॉलर में ही हमसे तेल खरीदें? दुनिया की जो अलग अलग अहम ताकतें हैं, अलग अलग अहम देश हैं, वो जिस करेंसी में चाहें हमसे उस करेंसी में तेल खरीदें। और जब आप हमको सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे हैं, बदले में हम भी सिर्फ और सिर्फ डॉलर में ही तेल नहीं बेच रहे हैं, तो फिर वो जो तीसरी वाली शर्त है कि मतलब हम उस तेल की कमाई से सिर्फ और सिर्फ आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट करें, वो भी मामला यहीं ख़त्म हो जाता है। क्योंकि ये 1970 और 75 का दौर नहीं है, बल्कि अब 2026 है, जहाँ पर चाइना जैसी बड़ी बड़ी इकोनॉमी सामने निकल कर आ चुकी हैं। दुनिया का शायद ही कोई आज़ाद देश होगा कि जो चाइना या चाइना के अलावा इंडिया और इस जैसे कुछ और देशों की उभरती हुई इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट ना करना चाहेगा या उनसे व्यापार ना करना चाहेगा। अब वैसे इस बात में कोई शक नहीं है कि ये जो ईरान जंग हुई है, इसकी वजह से ये जो 50-55 साल पुराना पेट्रो डॉलर है, जिस पर अमेरिका की पूरी इकोनॉमी का दारोमदार है, पूरा अमेरिकन एम्पायर जिस पर खड़ा हुआ है, उसके ऊपर वाकई ख़तरा मंडरा रहा है। इसी जंग की वजह से मंडरा रहा है, जैसा कि वेस्टर्न मीडिया में डिस्कस भी किया जा रहा है। मगर हाँ, यहाँ पर कुछ और भी फैक्टर हैं कि जिसको हमको इग्नोर नहीं करना चाहिए। इस पेट्रो डॉलर के ऊपर जो खतरा मंडरा रहा है, उसको लेकर जो कुछ और भी फैक्टर्स हैं, उनमें से एक तो है अरबों की एकता। मतलब ये कि जो लंबे वक्त से हमको मिडिल ईस्ट के अंदर अरब देशों की एकता नज़र आती थी, ख़ास तौर से फॉरेन पॉलिसी के मामले में, और जो इस पेट्रो डॉलर के लगातार कायम रहने की एक वजह भी थी, वो एकता इस जंग की वजह से ख़त्म हो चुकी है। आप देख रहे हैं कि सऊदी अरबिया और UAE अब खुलकर आमने सामने आ चुके हैं। दिख रहा है कि वो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। कतर, टर्की और ईरान जैसे देशों से जहाँ एक तरफ बात कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरबिया पाकिस्तान के साथ जाकर मिल गया है, और UAE तो इजराइल और अमेरिका से अपनी नज़दीकियाँ और भी ज़्यादा बढ़ा रहा है। मतलब सब ने अपने अलग अलग ग्रुप बना लिए हैं, और इन लोगों का इस तरह से टूटना भी पेट्रो डॉलर के ऊपर ख़तरा मंडराने की एक बड़ी वजह है। बात करें दूसरे फैक्टर के बारे में, तो वो ये है कि पिछले कई दशकों से हम देख रहे थे कि हमारी ये दुनिया यूनिपोलर थी। मतलब दुनिया का जो सुल्तान था वो सिर्फ एक ही था, और वो था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मगर अब हम ये देख रहे हैं कि ये दुनिया